Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. So we are starting this series where we will be covering daily 5 quants questions from the previous year ZAT. Right, we will move in the sequence starting from the ZAT 2024. है ना, ZAT 2024 की क्वांट्स काफी लोगों को हार्ड लगी थी और काफी लोग ये बोल रहे थे कि सर एक आपका व्यू बता दो, आप कैसे सोल्व करते हो क्वेश्चंस को एंड हाउ यू स्कोर द मार्क्स. सो वही मैं आपको बताऊंगा कि कट ऑफ क्लियर करना है ना थ्रू द जैक 2024 वाज नॉट डिफिकल्ट. हम यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या था और क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना चाहिए था. राइट, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज ज्वाइन अवर टेलीग्राम एंड द व्हाट्सएप चैनल. द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन. एंड the next part is, if you haven't subscribed our channel, please subscribe to our channel. We daily post very good qualitative content and we don't prefer to waste anyone's time in search of views or in race of getting more subscribers. So we just want to have good subscribers, good learners. And let's start. तो स्टार्ट करते हैं. क्या बोल रहा है? इन ए स्मॉल कॉलेज स्टूडेंट्स आर अलाउड टू टेक ओनली वन स्पेशलाइजेशन. Traditionally, only two specializations are offered: science and arts. Students enrolled to specialize in science must take physics and mathematics subjects, while students enrolled to specialize in art must take economics and politics subject. Right? Science वालों को जरूरी क्या है, क्या लेना पड़ेगा? फिजिक्स एंड मैथ्स. राइट, अब देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है ना, इसके पार्ट्स भी नहीं है, दिस इज जस्ट वन क्वेश्चन. और आर्ट्स वालों को आपको क्या लेना पड़ेगा? इको एंड पोल साइंस. Students enrolled in science are not allowed to take either economics or political science, ठीक है, while students enrolled in arts are not allowed to take either physics or mathematics. Right? Recently, the college has started a third specialization called MAT-ECO that requires students to take economics and mathematics. ठीक है, एक नई स्पेशलाइजेशन आई है ME, that is MAT-ECO, that requires students to take maths and eco both. ठीक है. However, MAT eco students would not be allowed to take either physics or political science. Physics और political science नहीं होगा. When the college opens this new specialization for enrollment, it allows students originally enrolled in science or arts to switch to MAT eco. From among the students originally enrolled in arts, 20 students switch to MAT eco. This makes the number of science students twice the number of art students. After this, from among the students who originally enrolled in science, 45 this makes the this. तो यहां तक आपको समझ आ गया है ना. अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट डिटेल है उसको पार्ट्स में हम समझते हैं. ठीक है, देखो पहले साइंस में कुछ स्टूडेंट्स होंगे, कुछ आर्ट्स में होंगे. अब क्या है, उनको शिफ्ट करने का चांस दिया हुआ है एंड सम स्टूडेंट्स टेक द शिफ्ट. फ्रॉम अमंग द स्टूडेंट्स ओरिजिनली इनरोल्ड इन आर्ट्स, 20 स्टूडेंट्स स्विच टू मैट इको. आर्ट्स से मैट इको कितने जा रहे हैं? 20. दिस मेक्स द नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्ट स्टूडेंट्स. ठीक है, अब देखो पहले आर्ट्स में एक्स थे, बाद में आर्ट्स में कितने हो गए? x minus 20. Right? This makes the number of science students twice the number of art students. तो साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं अब कितने हो गए? twice of this value, that is 2x minus 40. Understood? After this, from among the students who originally enrolled in science, 45 students switched to MAT-ECO. यहां से 45 students MAT-ECO में चले गए, तो कितने रह गए? 20x minus 85. This makes the number of art students twice the number of science students. This makes the number of art students twice this value, that is 4x minus 170. Right? तो कितना आया? 3x is equal to 150 and x की वैल्यू कितनी आ गई? 50. Right? अब देखो क्या बोल रहे हैं. In total, how many students from among those who originally enrolled in science or arts now taking economics? है ना, ध्यान से पढ़ो. पहले x की वैल्यूज देख लेते हैं. स्टार्टिंग में x 50 था, फिर 30 हो गया आर्ट्स में, है ना. 50 था पहले यहाँ पे 50 स्टूडेंट्स थे, अब यहाँ पे 30 हो गए. और यहाँ पे साइंस में ओरिजिनली कितने थे? 2x माइनस 40, दैट इज 100 माइनस 40. 60 स्टूडेंट्स थे और उसके बाद कितने रह गए? 45 चले गए तो 15 रह गए, है ना. अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं. इन टोटल हाउ मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम अमंग दोज हु ओरिजिनली इनरोल्ड इन साइंस और आर्ट्स, मतलब ये ओरिजिनल स्टूडेंट्स right are now taking economics. ठीक है. In total, how many students from among those originally enrolled in science or arts are now taking economics? Right? अब देखो इनमें से तुम्हें ये देखने 60 और 50 में से कितने स्टूडेंट्स के पास अब इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है ना. कितने स्टूडेंट्स के पास इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है? आप ये देखो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट आपका कैसे आएगा. इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट आपका कैसे आएगा? या तो आपके पास आर्ट्स होनी चाहिए
या फिर आपके पास एमई होनी चाहिए। अब आर्ट्स वाले बंदे 20 के पास एमई है, 30 के पास आर्ट्स है, तो इनके पास तो इकोनॉमिक्स होएगी, तो 50% आर फ्रॉम हियर। और साइंस वालों में देखो 15% है जो साइंस है, इनके पास तो इकोनॉमिक्स नहीं होगी, बट 45% जो एमई में गए हैं उनके पास तो इकोनॉमिक्स होगी, राइट। तो 45 यहां से आ गए, तो टोटल कितने हुए, 50 प्लस 45 दैट इज 95। 95 इज माय आंसर, है ना। अब देखो ध्यान से पढ़ो, ये क्वेश्चन आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर टॉपिक से था, यहां से था, वहां से था, वेन डायग्राम से था, किसी से नहीं था। सिंपल आप क्वेश्चन को समझोगे, you will be able to complete the question within the time limit. Do you all agree with me? Everyone? समझ आया सभी को? थोड़ा सा बस जहां पे डिफिकल्टी का लेवल है वो यही है कि आपको विद रिस्पेक्ट टू द जेट ये क्वेश्चन लेंदी लग सकता है, और इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने में, कॉम्प्रीहेंड करने में काफी स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी आ सकती है। दैट वाज द ओनली डिफिकल्ट पार्ट इन दिस क्वेश्चन, अदरवाइज कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। द ओनली डिफिकल्ट पार्ट वाज द लैंग्वेज ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ रनिंग ए मूवी थिएटर इज 10,000 पर डे प्लस एडिशनल 5,000 पर शो। 10,000 मेरी फिक्स कॉस्ट हो गई और एडिशनल 5,000 per show is my variable cost. The theater has 200 seats. A new movie released on Friday. There were 3 shows where the ticket price was 250 each for the first 2 shows and 200 for the late night show. First 2 show price was 250 and seat मेरा हमेशा same रहेगा, that is 200. For all the shows together the total occupancy was 80%. है ना, सभी shows को मिला के total occupancy कितनी थी, 80%। मतलब मेरी total seats कितनी होगी 3 shows को मिला के, 200 into 3 that is 600 seats। इसमें मेरी ऑक्यूपेंसी कितनी है, कितनी सीट्स ऑक्यूपाई है, 80% ऑफ दिस वैल्यू, 480 सीट्स आर ऑक्यूपाइड। व्हाट वाज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पॉसिबल। अब देखो कॉस्ट तो आपकी सेम रहेगी, है ना, आपको मैक्सिमम अमाउंट प्रॉफिट कैसे आएगा, रिवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो आपको रिवेन्यू इंक्रीज करना पड़ेगा। रिवेन्यू इंक्रीज कैसे होगा वो देखते हैं। अब देखो पहले शो की 250 टिकट है, 250 इज द टिकट प्राइस, यहां पे मैं 200 पीपल को प्लेस कर दूंगा बिकॉज मैक्सिमम टू मैक्सिमम देना चाहूंगा। नेक्स्ट शो की भी 250 प्राइस है टिकट, तो यहां पे भी 200 लोग बिठा दूंगा और बाद में 80 लोग मैं यहां पे बिठाऊंगा। और यहां पे मैंने 80 लोग क्यों बिठाए, यहां पे 200 क्यों नहीं बिठाए, क्योंकि यहां पे मेरा सबसे कम रिवेन्यू आ रहा है, 200 पर पर्सन। यहां पे मैं मैक्सिमम दे रहा हूं और 200 से ज्यादा दे नहीं सकता बिकॉज आई जस्ट हैव 200 सीट्स इन माय थिएटर, राइट। तो यहां से रिवेन्यू देखते हैं कितना आएगा, 200 इंटू 250, 200 इंटू 250, 200 इंटू 80, इनका एडिशन, दैट विल बी 500 इंटू दिस वैल्यू, ये हो गया मेरा 1 लाख, और यहां से मेरा आया 16,000, राइट। सो ये मेरा आ गया 1,16,000 इज माई रिवेन्यू, राइट। अब देखो 3 शो चलाए मैंने, है ना, एक दिन में मेरी 10,000 पर डे को तो कॉस्ट ये थी, तो यहां से कॉस्ट अगर रिमूव करूंगा 1,06,000, राइट। और 3 शो चलाएंगे तो 5,000 इंटू 3 15,000 मेरी एडिशनल कॉस्ट आएगी, राइट, वेरिएबल कॉस्ट। तो यहां से मेरी कितनी कॉस्ट रह गई, टोटल प्रॉफिट कितना आ गया, 91,000 इज माय मैक्सिमम प्रॉफिट, 91,000 इज माय मैक्सिमम प्रॉफिट। अब मुझे प्लीज कमेंट में ये बताओ कि वाज दिस क्वेश्चन डिफिकल्ट, क्या आपको समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा, वाज दिस क्वेश्चन डिफिकल्ट एट ऑल। जो क्वेश्चन में बोला है सिर्फ हमने वही किया है, वी यूज द लॉजिक ओनली। क्या हमने कुछ नया फॉर्मूला, नया कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है, कुछ नहीं किया, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन में भी हो सकता है, बट इवन फ्रॉम द कैलकुलेशन पार्ट ऑल्सो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि कुछ बहुत ज्यादा कैलकुलेशन था, है ना। कैलकुलेशन भी इतना कुछ मुझे नहीं लगा पर्सनली, है ना। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, मे बी आपको थोड़ी सी बेटर क्लैरिटी उसमें आए, है ना। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, पहले देखो जेट में अगर आपको अच्छे से एग्जाम देना है, अच्छे से क्वेश्चन फोड़ने हैं, है ना, सबसे पहले हमारा यही होगा कि हम क्वेश्चन को अच्छे से समझें, है ना। क्वेश्चन आपने अच्छे से समझा हुआ है, देन आई डोंट थिंक यू विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, क्या बोला है, ए फ्लाइट ट्रेवलिंग टू ए डेस्टिनेशन 11,200 किलोमीटर अवे was supposed to take off at 6:30 AM। 6:30 को उसको वहां से टेक ऑफ करना था एंड डेस्टिनेशन वाज 11,200 किलोमीटर अवे। ड्यू टू बैड वेदर द डिपार्चर ऑफ द फ्लाइट गॉट डिलेड बाय 3 आवर्स, है ना। डिपार्चर कितने से डिले हुआ, 3 आवर्स से डिले हो गया, ठीक है जी। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, द पायलट इंक्रीज द एवरेज स्पीड ऑफ द एयरप्लेन बाय 100 किलोमीटर पर आवर
फ्रॉम द इनिशियली प्लान्ड एवरेज स्पीड टू रिड्यूस द ओवरऑल डिले टू 1 आवर, है ना। एक्स अगर उसकी एक्स किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड थी, तो अब नई स्पीड कितनी हो गई, एक्स प्लस 100 किलोमीटर पर आवर। और यहां से आपका क्या हुआ, द ओवरऑल डिले टू 1 आवर, है ना, टू रिड्यूस द ओवरऑल डिले टू 1 आवर। पहले 3 आवर का डिले था, अब सिर्फ कितने का डिले होगा, 1 आवर। मतलब पहले जितना टाइम ले रहा था उससे 1 घंटा एक्स्ट्रा अब लेगा, है ना, एक्स्ट्रा तो लेगा बट सिर्फ 1 घंटा लेगा। Had the pilot increased the average speed by 350 km per hour from the initially planned average speed, when would have the flight reached its destination? अब देखो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए जेट में, है ना, एवरी क्वेश्चन मस्ट बी सोल्व थ्रू द बेसिक्स ओनली। ऐसा नहीं है कि आप हर क्वेश्चन के लिए एक नया फॉर्मूला रट के जाओगे, बेसिक से ही इसको ट्राई करते हैं, राइट। लेट से अगर वो 11 200 किलोमीटर को एक्स की स्पीड पे चलता तो वो टी आवर्स लेता, राइट। और अब अगर 11 200 को, है ना, कुछ बोला था, ड्यू टू द बैड वेदर द फ्लाइट गोट डिलेड बाय 3 आवर्स, द पायलट इंक्रीज द स्पीड ऑफ, अब पायलट की स्पीड अगर एक्स प्लस 100 से इंक्रीज हुई है ना, ठीक है। अब ध्यान से ये बात देखना, वो 3 आवर का डिले हुआ है, मतलब 3 आवर बाद चलेगी फ्लाइट, और उसने स्पीड इंक्रीज करी, स्पीड इंक्रीज करी तो सिर्फ 1 आवर का ही डिले आया, है ना। इसको ध्यान से समझो, मैं क्या, काफी स्टूडेंट्स को ये शायद क्लियर नहीं होगा। जैसे लेट से 6:30 बजे इस फ्लाइट को चलना था, और लेट से 1 PM पे वहां पे पहुंचना था कहीं भी, तो ये 9:30 पे अगर चलेगी 3 आवर्स डिले में, तो यहाँ पे कब पहुंचेगी, 4 PM पे, राइट। बट यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, यहाँ पे डिले कितने का हुआ है, 3 आवर्स का, बट ओवरऑल डिले कहाँ पे रिड्यूस हुआ, 1 आवर का। 1 आवर का कैसे हुआ, मतलब यहाँ पे अब कितने बजे पहुंचेगी, 2 PM पे, राइट। तो जो उसने एक्चुअल टाइम लेना था और जो अब टाइम लिया है ना, जो एक्चुअल टाइम लेना था और जो अब टाइम लिया है, देखो 9:30 PM की वजह से उसने 4 PM पे पहुंचना था, दिस वाज द एक्चुअल टाइम, राइट। अब यहाँ पे वो 2 PM पहुंच गई, तो वो जल्दी कितने आवर्स जल्दी पहुंची, कितना आवर्स उसने सेव किया, कैन आई से कि 2 आवर जल्दी पहुंच गई, है ना, 2 आवर जल्दी पहुंच गई। दोबारा समझो, दोबारा समझो, 6:30 पे चलना था, लेट्स से इट टेक एक्स आवर्स, तो यहाँ पे उसको पहुंचना था कायदे से 6:30 प्लस एक्स आवर्स। अब वो 3 घंटे लेट चलेगी तो 9:30 पे चलेगी, अभी भी कायदे से उसको एक्स आवर्स लेगी, एंड 9:30 प्लस एक्स आवर्स पे वो पहुंच जाएगी, ठीक है। 9:30 प्लस एक्स आवर से पहुंच जाएगी। अब यहाँ पे वो कितना घंटे का डिफरेंस है, 3 आवर का डिफरेंस है, और ये क्यों आया, क्योंकि 3 घंटे वो लेट चली। बट आपको बोल रहा है ये डिफरेंस आपको कितना करना है, सिर्फ 1 आवर का डिफरेंस करना है ना, कि 1 घंटा लेट पहुंचे। 1 घंटा लेट कैसे पहुंचेगी, यहाँ पे आप x-2 कर दो, यहाँ पे x-2 कर दो, मतलब जो नई स्पीड पे वो ट्रेवल टाइम ले रहा है वो पहले से 2 घंटे कम ले रहा है, तो मतलब जो ये डिस्टेंस बाय न्यू स्पीड है, यहाँ पे मेरा आ गया t-2, यहाँ पे मेरा आ गया t-2। नाउ लेट्स सी हाउ वी शुड प्रोसीड आफ्टर दिस, है ना। बेसिकली आपके पास एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं पहले क्या पूछा है, हैड द पायलट इंक्रीज द एवरेज स्पीड बाय 350 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम द इनिशियली प्लान्ड एवरेज स्पीड, व्हेन वुड हैव द फ्लाइट रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन। ठीक है, पहले टी के लिए सोल्व कर लेते हैं, राइट। और लेट्स डू वन थिंग, दिस इज 11 200 इज इक्वल टू टी एक्स, this is 11 200 is equal to tx plus 100t minus 2x minus 200, so this will be 11 400, ठीक है। 200 इधर चला गया, tx की जगह मैं 11 200 रख सकता हूँ, प्लस 100t माइनस 2x, राइट। सो 200 is equal to 100t minus 2x, so this will be 100 plus x is equal to 50t, राइट। यहां से मुझे x की वैल्यू पता लग गई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 50t माइनस 100, तो यहां से मुझे x की वैल्यू पता लग गई, दैट इज 50t माइनस 100, राइट। इसको भी सोल्व कर सकते हैं, 50t का स्क्वायर माइनस 100t माइनस 11200 इज इक्वल टू 0। 50 अगर कॉमन ले लूंगा तो t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 224 इज इक्वल टू 0,
ठीक है, यहाँ पे वी कैन थिंक ऑफ सम वैल्यू। 16 into 14 बनेगा क्या? लेट मी ट्राई इट। 16, yes, 16 into 14, so I can say t square minus 16t plus 14t minus 2 to 4 is equal to 0। यहां से t minus 16, तो t की वैल्यू मेरी 16 आ जाएगी, राइट, पॉजिटिव वैल्यू। सो t की वैल्यू अगर 16 आ गई, इफ आई गेट द वैल्यू ऑफ t एज 16, दैट इज टाइम मेरा 16 घंटे लगेगा, तो 16 into 5 80 800, तो x मेरा आ गया 700। तो मेरी स्पीड थी 700 इनिशियल, है ना। तो x वाज स्पीड, t वाज द टाइम, राइट, ठीक है। तो 6:30 जो फ्लाइट चलनी थी वो कायदे से 16 घंटे बाद पहुंचेगी, दैट इज 22:30, है ना। 6:30 बजे जो फ्लाइट चलनी थी वो 16 घंटे बाद पहुंचेगी, दैट इज 22:30 पे पहुंचेगी, राइट। अब क्या बोल रहे हैं, हैड द पायलट इंक्रीज द एवरेज स्पीड बाय 350 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम द इनिशियली प्लान्ड एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड मेरी 700 की जगह कितनी हो जाएगी? 1050, 350 से इंक्रीज हो गया, राइट। तो देखते हैं अब क्या होगा, है ना, अब कितना टाइम लगेगा। डिस्टेंस मेरा कैसे आएगा? ओरिजिनल स्पीड इंटू दिस 700 into 16 is the distance, है ना। डिस्टेंस इज टाइम इंटू स्पीड डिवाइडेड बाय द न्यू स्पीड। 0 से 0 कैंसिल, दिस इज 21, दिस इज 40, yes, and this is 7273, this should be 32 by 3, right? So that will be 10 hours and 40 minutes, 10 hours and 40 minutes, yes, this is 10 hours and 40 minutes। तो अभी मुझे कितना टाइम लगेगा? 10 घंटे 40 मिनट, राइट, 10 घंटे 40 मिनट, राइट। अब देखो 6:30 वाली फ्लाइट अब कितने बजे चलेगी? 9:30 बजे, और इसके बाद इस पे 10 आवर्स ऐड करो, दैट इज 1930, और इसके बाद 40 मिनट्स ऐड करो, दैट इज 2010, है ना। मतलब 8:10 पे वो पहुंच जाएगी, है ना। व्हेन वुड अ फ्लाइट द रीच द डेस्टिनेशन? 8:10 p.m, 8:10 p.m would be the time for the flight to reach the destination, right? So again I would say this was the question on the difficult level, है ना। बट ऐसा क्वेश्चन ये नहीं था, मतलब द स्टूडेंट्स हु आर गुड एट सोल्विंग द कैलकुलेशंस और डूइंग द कैलकुलेशंस might have done this question, otherwise a lot of students might have give up on this question just because it was becoming too lengthy, है ना। थोड़ा सा अगेन मैं कहूंगा क्वेश्चन को समझने में दिक्कत आ सकती है, बट ऐसा नहीं था कि यहाँ पे टाइम एंड स्पीड का या टाइम स्पीड डिस्टेंस का कुछ एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपका लग रहा होगा, है ना। दैट वाज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक थ्रू आउट दिस लेक्चर, कि जो भी क्वेश्चन होंगे वो बहुत बेसिक से सोल्व होंगे। देयर वुड बी केसेस जहां पे आपको लैंग्वेज समझ नहीं आएगी, जहां, और ऐसे केसेस होंगे जहां पे आपको लैंग्वेज समझ आएगी, राइट। So let's solve this question also. Fourth question of the class, we will do 5 questions, right? If you like the content, please hit on the like button, right? Let's target 200 likes for this video, and as soon as I complete 200 likes, I will release the next video for the quants. And also show your love in the comment section so that I get to know ki if you are really liking the content, if you are really liking the approach, right, then only there is point to continue this series, right? log का question देखते हैं क्या बोल रहे हैं। Consider the equation log 5 log x minus 2 base 5 is equal to 2 log 25 2x minus 4 where x is a real number. For how many different values of x does the given equation hold? अब सबसे पहले तो आपको पता है x minus 2 must be greater than 0, so I can say x must be greater than 2. This is the property of the log, right? And 2x minus 4 greater than 0, that also means x is greater than 2. So मुझे ये तो पता है कि x मेरा greater than 2 तो होगा ही होगा, right? Now let's do the log thing. Log 5 x minus 2 is equal to 2 log, यहाँ पे 5 स्क्वायर लिख सकता हूं, और ये 2 जब बाहर आएगा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, दिस 2 विल बिकम 1/2, सो ये 2 से 1/2 विल कैंसिल, सो यहाँ पे डायरेक्टली क्या बन गया? log 5 2x minus 4, बेस में log 5 है, बेस में 5 है, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, सो आई कैन से x minus 2 must be equal to 2x minus 4, that means x should be equal to 2, x should be equal to 2, बट हमने ऑलरेडी कंडीशन देखी है कि x must be greater than 2, x must be greater than 2, that's why there will be no solution, that is 0 must be the correct answer. For how many different values of x does the given equation hold? There is no value of x, right? So 0 will be the answer, right? देखो कितना easy question था, कितना सीटर question था, right? Now let's do this question also. क्या बोल रहे हैं, है ना।
In a school, there are the number of students in each class from class 1 to 10th in that order are in AP. ठीक है. The total number of students from class 1 to 5 is twice the total number of students from class 6 to 10th. Okay. If the total number of students from class 1 to 4 is this, how many students are there in class 6th, right? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10th, ये 10 क्लास की बात की हुई है एंड दिस इज इन एपी, राइट. द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास इज ट्वाइस. लेट से यहां से लेके यहां तक दिस इज 2x एंड दिस इज x. तो यहां पे कम स्टूडेंट्स हैं, मतलब ये डिक्रीजिंग एपी बनेगी. या फिर मैं कह सकता हूं दिस इज a प्लस डी, दिस इज a प्लस 2d, दिस इज a प्लस 3d, दिस इज a प्लस 4d, है ना. और दिस इज a प्लस 5d 6d 7d 8d एंड दिस विल बी a प्लस 9d. ठीक है. क्या बोल रहे हैं, है ना. देखो पहली इक्वेशन को यूटिलाइज कर सकते हैं. पहली इक्वेशन यहाँ पे क्या कर सकता हूं मैं, ट्वाइस ऑफ दिस x इज इक्वल टू दिस सम 1 से लेके 5 तक का सम. तो इसका सम क्या आएगा, ए 5a प्लस 1 से लेके 1d 2d 3d 4d, है ना. 1 से लेके 4 तक का सम क्या आता है बताओ. 4 इंटू 5/2 दैट इज 10, राइट. सो दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, यहां पे भी 5a हो जाएगा प्लस 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 दैट इज 35d, right. So I can say 10a plus 20d is equal to 5a plus 35d, or I can say 5a is equal to 15d, or I can say a is equal to 3d. अब मुझे ये कॉम्बिनेशन पता लग गया, दैट इज a is equal to 3d, और मैंने फर्स्ट कंडीशन को यूटिलाइज कर ली. ठीक है. सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है, इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 1 to 4 इज 462, 1 to 4 में कितने स्टूडेंट्स हैं, 462, दैट मीन्स 4a प्लस 9876, है ना. ये एपी बनेगी 9876. तो 17 प्लस 7 24 30d इज इक्वल टू 462, और डी की ए की जगह आई कैन राइट 3d, सो दिस विल बिकम 12d, दैट इज 42d is equal to 462. This is 2. This is 2. तो यहां से d की वैल्यू क्या आ रही है, 11. d is 11 और a की वैल्यू क्या आ जाएगी 33. द वैल्यू ऑफ a विल बी 33. क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास 6. काफी सिंपल क्वेश्चन है. क्लास 6 में कितने स्टूडेंट्स है, a प्लस 4d, दैट इज a प्लस 4d 44, दैट मीन 77 स्टूडेंट्स आर देयर. 77 स्टूडेंट्स आर देयर. अंडरस्टूड. यहां तक सभी समझ आए. वी हैव कंप्लीटेड 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 28 क्वेश्चंस ऑफ द जैट 2024. देख लेते हैं एक बार क्या हमने किया. पहला क्वेश्चन था, राइट, आई वुड रेट इट ऑन द हायर डिफिकल्टी साइड जस्ट बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज, अदरवाइज दिस क्वेश्चन वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट. सेकेंड क्वेश्चन सीट्स वाला, आई थिंक दिस मस्ट बी अटेम्प्टेड बाय एवरी एस्पिरेंट, राइट. दिस वाज ऑन द इजियर साइड, और आई वुड से सिटर क्वेश्चन. थोड़ा बहुत सोचना आपको जेट में 100% पड़ेगा, बट यहाँ पे पूरे में कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता कोई भी आपको स्टेप समझ नहीं आया होगा, राइट. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. Obviously this was on the difficult side, the language was complex, understanding a lot of things was complex, but calculation was very simple. Calculation wise, I think the one who is very good at calculations or average at calculation must have attempted this question. और थोड़ा सा आंसर यहाँ पे ऐसे होते हैं जो आपके obvious आंसर्स होते हैं, मतलब कईयों का 1130 आ रहा होगा, कईयों का 750 भी आ रहा होगा, कईयों का 510 भी आ रहा होगा, है ना. 510 बहुत लोगों का आ रहा होगा क्योंकि उन्होंने ये 3 आवर्स का डिले काउंट नहीं किया होगा, तो उनकी 510 पे लैंड कर दी होगी. उन्होंने 630 मान के किया होगा, 930 से आपको स्टार्टिंग टाइम स्टार्ट करना था, है ना. 930 से आपको, जो मैंने 930 से किया यहां से स्टार्ट करना था. तो यहाँ पे ट्रिकी ऑप्शंस होते हैं, राइट. फोर्थ क्वेश्चन वाज अ सिटर क्वेश्चन, एवरीवन शुड हैव अटेम्प्टेड, right. And I also expect this kind of question, this was a simple cat question, और ये भी आपको करना चाहिए था, right. So I can say first, second, third, fourth, fifth difficult, right. second मेरा कौन सा था, हाँ थिएटर वाला, right. easy, then plain वाला difficult, easy, easy, right. So 1 2 3 questions should be done out of the first 5 questions in the exam, and I hope a lot of students will agree with me, right. Please post it in the comment section कि आपने honestly कितने
सही आंसर्स दिए आउट ऑफ द फर्स्ट 5 क्वेश्चंस. एंड इफ यू वांट मी टू कंटिन्यू दिस सीरीज, you have to tell me in the comments. You must have noticed that I start different types of series, but I continue only those series where I get good response, because if only 50 people, 60 people are responding, that means either the series is not good or either the people are not liking the content. So if you are liking the content, you have to tell me through the comments or through your liking, and please share this in your other groups also, so that we can get a good reach, and we will keep continuing this series for every exam. Thank you and have a very happy